I think it is being recorded at the time. So thank you for reminding, Atif. So in the last class, we were discussing about heat diffusion equation, and we derived it for the Cartesian coordinates. So basically, the heat diffusion equation is to find temperature distribution. So in general, the heat diffusion equation is dependent upon x, y, z, and time, and it can be simplified for certain simplified heat transfer phenomena, which we will be studying in detail in chapter number 3 and 4. For instance, that we can simplify it for the steady state condition in which the right hand side, which involves the temperature variation with time, that becomes equal to 0. And then because we have got an equation, so we need to solve it. So in order to solve it, if we have got an ODE, for instance, we have got equation number 9 for a certain problem, then we need to integrate it twice, as we discussed in the last class. So if we integrate it twice, then we will get its general solution, which is C1x plus C2. Now, in order to find C1 and C2 value, we need some boundary conditions to be applied on the this problem. So in this case, those boundary conditions are related with heat transfer. So in the last class, if you know that we discussed four boundary conditions. One was constant temperature boundary condition, which was also called Dirichlet boundary condition. So Dirichlet is just the name. So you can say that it is a constant uh, temperature boundary condition. And then the second boundary condition is the Newman boundary condition, in which the temperature gradient is known to us rather than temperature value. Okay, so the third boundary condition is the adiabatic boundary condition, which means that the flux value is equal to 0, because you know that the flux is minus k partial t by partial x. So if the flux value is equal to 0, then minus k just eliminates, and then only the term remains, that is partial t by partial x. And then the fourth boundary condition was convective boundary condition, which is used to heat or cool any surface. So convective, or we can also include the radiation effect as well. So if we put H combined here in place of H, then H combined would be H convection plus H radiation. So H radiation definition we studied in chapter number 1. So this was the table. We ended our lecture, last lecture. So now we are going to discuss a couple of numerical problems before we continue with the discussion of solution of this heat diffusion equation in chapter number 3, 4, and 5. So in order to yes. सर आपने जो लेक्चर स्लाइड भेजे हैं उसमें वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी इक्वेशंस थी, वो हमारे सिलेबस में है कि नहीं? जी पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी हैं और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी हैं, लेकिन आपको इसकी डेरिवेशन क्रैम करने की जरूरत नहीं है. अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स का कोई क्वेश्चन आएगा, तो ये वाला जो रिलेशन है आपकी सामने स्लाइड पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, इक्वेशन 10 या फिर इक्वेशन 11, जो कि ये वाली है, ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, और यहाँ से आपने आगे इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसको करना होगा एनालाइज, और ये सारी चीजें हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 में. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है Charis? Okay, sir. Charis. But from now on, if you can please tell me your name, and then if you can ask your query or anything you want to comment on, it would be easier for me to address you. Okay? So okay. Thank you. Okay, so now we are going to do a couple of numericals, and then we will study these equations in detail in chapter number 3. Okay, so I hope now the strength is respectable for the class. Most of the people should have joined by now, so we can start the solution of first numerical example.
So the statement of the problem is the temperature distribution across a wall. Now the thickness of the wall 0.3 meter, which is given to us, it, at a certain instant of time is now it is given by this temperature distribution is a quadratic one. So the relation is a plus bx plus cx. So which means that the first thing we can deduce from here that it is a steady state problem. We are talking about steady state problem. So how can we know that it is a steady state problem? Because there is no temperature term on the right hand side. So it means that we are only interested in temperature distribution in the space, like, and because the variable is only x, so it means that it is one-dimensional steady state problem, right? Because the independent variable is only x, but the temperature distribution is quadratic. Now T is given in degree Celsius and x is in meter. Now because A, B and C, they are constant, so those values are given. So A value is 200 degree centigrade, B value is minus 200 centigrade per meter, because now temperature should be in centigrade. So because it is being multiplied, B is being multiplied with x, so meter is the unit of x. So the unit of B is in centigrade per meter, and similarly the units of C is in centigrade per meter square, because we have got an x square term with the C, right? So I hope that this is clear. Now the thermal conductivity of the wall is given as 1 watt per meter Kelvin. Now if I ask you that what is the temperature value at the left hand side surface where x is equal to 0, can we get that value? Is it difficult? Yes, sir. बिकॉज एक्स जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये बी और सी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, देन टेम्परेचर एट द लेफ्ट हैंड wall would be equal to 200, and similarly if we put x is equal to 0.3 meter, then we can find the value of temperature at right hand side surface, which is at x is equal to 0.3. So if we put in the values of this 200 minus 200 into 0.3 plus 30 into 0.3 square, then we should be able to get temperature value of 142. If you do that minor calculation on your calculator, you should be able to find it readily. Now first of all, we will be discussing about the rate of heat transfer into and out of the ball and the rate of change of energy stored by the ball. Now, because we have to deal it on the unit surface basis, so it means that we would be talking about heat flux, right? Because heat flux is heat transfer rate per unit area. Now, this is the part A, and the part B is if the cold surface is a cold surface. Now, what is the cold surface in this problem? Left hand side surface or right hand side surface? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे टेम्परेचर था 200, तो राइट हैंड साइड पे अगर कैलकुलेट करें तो मैंने जैसे अभी बताया है उसकी वैल्यू आएगी 142.1 डिग्री सेंटीग्रेड. और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमें एक्स की वैल्यू भी पता है, ए बी और सी की वैल्यू भी पता है, तो वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर एट द right hand surface. So the right hand surface is the cold surface at the moment. So it is, if the cold surface is exposed to a fluid at 100 degrees, right? So now the fluid at the right hand side surface is at 100 degrees centigrade. What is the convection coefficient, which is H value, right? So two things we need to do. One is to determine the rate of heat transfer into and out, as well as the energy stored in that wall, and then in the second part we have to determine the convection coefficient. So first of all, we see the schematic of this. Now we can see that on the left hand side surface
the temperature is 200 degrees centigrade, and we determine it by putting the values of x is equal to 0 in this equation and a, b, c from here. And then the right hand side temperature, that can also be known to us by the same thing, and we can determine it to be equal to 142.7 degrees centigrade, right? K की वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन 200 माइनस 200x प्लस 30x, और फ्लूइड कौन सा है वो राइट हैंड साइड सरफेस के साथ से मूव कर रहा है और उसका टेम्परेचर है 100 डिग्री और हमने एच फाइंड करना। अच्छा जी, फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए होता है जो कि पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स होता है। तो अगर यहाँ से ग्रेडियंट की वैल्यू निकालें, जो टेम्परेचर की यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ से ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी 60x माइनस 200, क्योंकि ये वाला जो पहला 200 है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे dt बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा 60x माइनस 200। इज दैट क्लियर? आई होप दैट वी कैन फाइंड dt बाई dx इजीली। तो dt बाई, क्योंकि dt बाई dx हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमने जब भी हीट फ्लक्स निकालना होता है, flux is equal to minus k into partial t by partial x, right? So if we look at this, qx is equal to minus k into partial t by partial x। अब हमने अभी partial t by partial x निकाला था 60x minus 200, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये इस पूरी फॉर्मुलेशन को 200 माइनस 60x कर देगा, ठीक है जी। तो अब हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हो तो बड़ा इजी है, के की वैल्यू हमें पता है कि वो इक्वल टू 1 है। तो फ्लक्स एट द लेफ्ट हैंड साइड सरफेस अगर निकालना हो तो एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में 0, तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी, अगर 0 जहाँ पे पुट करें ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी 60 इंटू एक्स वाली टर्म, और हमारे पास ये बच जाएगा 200 इंटू के। तो के की वैल्यू हमारे पास 1 वॉट पर मीटर केल्विन है, तो उससे हमारे पास क्यू इन जो कि लेफ्ट हैंड साइड सरफेस से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 200 वॉट पर मीटर। Now similarly, if we want to find the flux value at the right hand side surface, then what we need to do, that we need to put the value of x equal to 0.3 in this relation. So if we put the value of 0.3 here, so 60 into 0.3 would be equal to 18. So 200 minus 18 would be equal to 182 watt per meter square. So I hope that this thing is clear to everyone, that how we calculated the flux into the wall and out of the wall on the right hand side. So now the third term is the rate of energy stored in this system. So that should be equal to, if we remember the equation, E in minus E out plus E dot gen is equal to EST. This was the relation we studied in chapter number 1. Now, because in the problem statement there is no mention of any volumetric heat generation phenomena, so we can take that term is equal to 0. Now we know the flux value at the left hand side, which is equal to 200, and the flux value on the right hand side, which is 182. So if we kind of subtract them, then we would be getting the value of 18 watt per meter. Now, can anyone tell me that whether the temperature of the body would increase with time or decrease by this value? What is this value showing? Whether temperature would increase or decrease for this wall? Anyone? So decrease होगा. Decrease होगा. Excellent. Why is that? If you can explain it a little bit. सर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पहले ये देखें ना. पॉजिटिव है. तो ई इन ज्यादा हो रहा है या ई आउट ज्यादा हो रहा है? कैलकुलेट करना पड़ेगा तो. देखे ना, ई इन की वैल्यू है, ई इन ज्यादा है और ई आउट कम है ना. ई लेफ्ट हैंड साइड से जिसकी वैल्यू है 200 और ई आउट है राइट हैंड साइड से जिसकी वैल्यू है 182. नाउ एंटरिंग इज मोर and going out is less.
So it means that there would be some accumulation of energy in this wall. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेशन होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन होता तो फिर उस केस में क्या होना था कि जितना इन हो रहा है उतना ही आउट हो रहा होता, तब उस केस को हम कह सकते हैं कि वो स्टेडी स्टेट प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बात की है, तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर वो एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एज ए होल ये ट्रांजिएंट प्रॉब्लम थी। तो अगर स्टेडी स्टेट प्रॉब्लम होती तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर शुड बी इक्वल टू 0, विच मीन कि ये दोनों चीजें एक दूसरे को ई इन और ई आउट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती, जो कि हम नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह अभी करेंगे। अच्छा जी, ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 क्या था हमारा इस प्रॉब्लम का? सर ये 60x कहाँ से? दोबारा बताइए सर, ये ऊपर इक्वेशन में 60x लिखा हुआ है, 200 माइनस 60x। बिल्कुल बेटा, अगर आप अपना नाम बता दें मेरे लिए इजी हो जाएगा कम्युनिकेट करना आपके साथ। सर जीसी इस्माइल सर। जी जीसी इस्माइल, सबसे पहले ये देखें, ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चला है, ये जो जहाँ पे ये माउस का कर्सर है, कैन यू सी दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन? यस सर। ये इसकी वैल्यू आपको पता है, ये 200 230 कहाँ से आई है? ए बी और सी की वैल्यूज थी। जी सर, इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, अब dt बाई dx अगर निकालेंगे यहाँ से, तो पहली टर्म जो 200 है ये क्या हो जाएगी? ये 0 हो जाएगी इस्माइल। यस सर। दूसरी टर्म क्या बच जाएगी? -200। यस सर। तो तीसरी टर्म क्या हो जाएगी? 60x। यस सर। तो dt बाई dx की वैल्यू आ जाएगी 60x माइनस 200। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं तो फ्लक्स की वैल्यू होती है -k इंटू पार्शियल टी बाई पार्शियल एन। अब अभी हमने वैल्यू निकाली थी 60x माइनस 200 ना, तो अब अगर इस माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं तो ये चीज हो जाएगी 200 माइनस 60x। ठीक है इस्माइल? ठीक है। यस ठीक सर, है, समझ तो आ गया। आगे आगे वो x की वैल्यू पुट आप 0 पुट करेंगे तो q एट x इज इक्वल टू 0 निकल आएगा। जब x इज इक्वल टू 0.3 पुट करेंगे तो q आउट की वैल्यू निकल आएगी, जो कि यहाँ पे शो की गई है, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 200 आ जाएगा, जब x की वैल्यू 0.3 होगी तो ये 182 आ जाएगा। और एनर्जी स्टोर निकालनी होगी तो ई इन माइनस ई आउट से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, I think that it is clear to all. Now we can move on to the second part, which was to calculate the convection coefficient. Now, when we talk about convection coefficient, so it means that we are talking about Newton's law of heat cooling. Okay, and that is the relation for that is Q is equal to H into Ts minus T infinity. ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। अब कूलिंग क्योंकि राइट हैंड साइड सरफेस पे हो रही है तो टीएस की जगह जो वैल्यू आएगी वो टीएल की वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि टीएल की वैल्यू क्या होगी? वो 142.7 है ना, क्योंकि कन्वेक्शन ये राइट हैंड साइड सरफेस पे हो रही है, क्योंकि एयर यहाँ से फ्लो कर रही है। ठीक है जी, तो जो टीएस की वैल्यू है वो टीएल की वैल्यू आएगी जो कि 142.7 है। टी इंफिनिटी की वैल्यू हमें 100 डिग्री पता है, एच की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और क्यू जो कि होता है वो क्यू आउट के इक्वल होगा, क्योंकि हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं जो कि राइट हैंड साइड सरफेस। तो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हमें एच की वैल्यू अननोन है, बाकी हमारे पास तीनों चीजें जिसमें क्यू, टी एल और टी इंफिनिटी ये चीजें हमें नोन है, तो वहां से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू आउट इज इक्वल टू एच इंटू टी एल माइनस टी इंफिनिटी। ये हमने एनर्जी बैलेंस हमने राइट हैंड साइड सरफेस के ऊपर लगाया है, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि कन्वेक्शन राइट हैंड साइड सरफेस जो कि कोल्डर है थोड़ी सी, क्योंकि टी एल की वैल्यू 147 है और ये 200 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से अगर एच की वैल्यू निकालनी हो बड़ी सिंपल है, एच वुड बी इक्वल टू क्यू आउट डिवाइडेड बाय टी एल माइनस टी इंफिनिटी। क्यू आउट की वैल्यू 182 थी, टी एल की वैल्यू 142.7 है और टी इंफिनिटी की वैल्यू 100 है। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास आ गई 4.3 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, तो आई होप दैट दिस पॉइंट
or this part is clear to all. If there is any ambiguity, please ask the question at the same time. Okay, don't let me go forward. Okay, because understanding these things is more important. Okay, so I hope that सर this एक्सक्यूज मी सर जी सर आतिफ जी बस 1.7 आई, ये हमारे x को 0.3 पुट कर बेटा आपकी आवाज कट गई थी. इफ यू कैन स्पीक अगेन, इफ यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन. हमारे पास ये 142 आया टेम्परेचर जी हाँ जी. सर क्यू ये हमारे आउट पास 0.3 पुट करके आया x बिल्कुल. जब हम Tx में 0.3 पुट करते हैं तो हमारे पास 142 आएगा, और जब हम Q आउट वाले फार्मूले में जब 0.3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो 182 आएगी. तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड टेम्परेचर जो सा है बॉल का वो है 142.7. by putting x is equal to 0.3 in this relation, and then it जी आपकी आवाज नहीं आ रही. जी बताइए. आपकी आवाज आ रही है, बोलिए. ओके सर डन. ओके जी, थैंक यू. ओके सर ठीक है सर. Okay, now we move forward to a second numerical, which would be a little bit more complex, because the first one was just the simpler problem. Now it would be a little bit more complex problem. Now we talk about a plane layer of core, which is of thermal conductivity of 0.26 watt per meter square Kelvin, and the thickness is 1 meter. Now we talk about the phenomena in the y direction. ठीक है, ये चीज थोड़ी सी नोट कर लें, ये y डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर उसको देखें तो फिगर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो उसने उसको x डायरेक्शन लिया हुआ है. ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज. ठीक है, x यहाँ इस प्रॉब्लम के लिए y डायरेक्शन को जो कि अपवर्ड डायरेक्शन है उसको शो कर रहा है. ठीक है. Now the uniform volumetric heat generation, that value is given. Now it means that Q dot जो कि हमें 20 watt per meter cube उसकी value given है. The top surface of the layer transfer heats by convection. Now the top surface को कैसे represent किया गया है with the symbol of TS. ठीक है, TS is the top surface of this layer. ठीक है, ये जो top surface है, एक bottom layer है, एक top surface. ठीक है, the top surface of the layer transfer heat by convection to ambient air, for which H value is given जो कि convection coefficient है, और T infinity की value given. ठीक है जी. T infinity is that value of fluid which is passing through this top layer. While receiving solar irradiation, जो कि GS की वैल्यू उन्होंने हमें बता दी है जो कि 400 वाट पर मीटर स्क्वायर कि वो सोलर रेडिएशन से आ रही है. The solar absorptivity and emissivity of the surface, that is a gray surface, और उन दोनों की वैल्यू 0.95 की है. अच्छा, इसमें एक चीज नोट करें कि इसमें कोई सराउंडिंग की बात नहीं की कि सराउंडिंग से वो कोई हीट एक्सचेंज कर रहे हैं. तो इसका क्या मतलब है कि हम एमिशन को डिस्कस करेंगे और रेडिएशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सराउंडिंग वाला जो रिलेशन यूज करते थे वो वाला वहाँ पर सराउंडिंग वाला कंपोनेंट नहीं आएगा. वो इंशाल्लाह हम अभी पार्ट बी में देखेंगे. सबसे पहले पार्ट ए है, राइट द स्टेडी स्टेट फॉर्म ऑफ द हीट डिफ्यूजन इक्वेशन. ठीक है, अब ये कौन सी हीट डिफ्यूजन इक्वेशन है जो कि हमने लास्ट वीक ड्राइव की थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में. यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की प्रॉब्लम है. फॉर द लेयर ऑफ कोर, वेरीफाई दैट द हीट डिफ्यूजन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय अ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन. अब उसने हमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही से दे दी है कि जो कि इस कोर के अंदर है. ठीक है, और उसकी उसने टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू Ts प्लस Q डॉट L स्क्वायर बाय 2K है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर. ये उसने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दे दी. अच्छा, ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से आप
कोई चीज आपको पता चल सकती है कि ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस किस्म की है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, किस किस्म की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ये? एनीवन? ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है? शारिद? सर लग तो क्वाड्रेटिक ही रही है। बिल्कुल, देखे ना ये एक्स Quadratic स्क्वायर है। वाली टर्म, बिल्कुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, ये क्वाड्रेटिक है। अब मुझे बताएं कि जब ये यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर अगर निकालना हो तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 सर। 0 जब पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो देखे ना ये जो ब्रैकेट के अंदर सेकंड टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो तब हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए कि मैक्सिमम टेम्परेचर किस जगह पे होगा अगर विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन? जब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होगा? जहाँ पे एक्स 0 है ना, एक्स 0 है ये बॉटम सरफेस के ऊपर, ठीक है? ये बात समझ आ रही है? ये चीज Yes. अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि x जब 0 पुट कर रहे हैं तो टी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, तो वो वाली वैल्यू कहाँ पे होगी? ये बॉटम सरफेस के ऊपर, ठीक है? अब उसने हमसे पूछा है फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड अबाउट द कंडीशन एट द बॉटम सरफेस। अब जो पहली चीज हम बता सकते हैं वो ये है कि बॉटम सरफेस के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। ये हमने पहली चीज फाइंड आउट कर ली बाय पुटिंग x इक्वल टू 0 इन दिस रिलेशन, ठीक है? बाकी आगे हम फ्लक्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, वो इंशाल्लाह ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहला हमारा ये है कि स्टेडी स्टेट इक्वेशन हमने लिखनी है फॉर दिस लेयर। अच्छा ये बताएं कि ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ये इसमें ये 1D प्रॉब्लम होगी, 2D प्रॉब्लम होगी या 3D प्रॉब्लम है? 1D है सर। 1D प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। और दूसरा ये बताएं कि इसमें कोई टाइम डिपेंडेंस है? कोई टाइम वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये है नहीं कि सर। स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ठीक है? और इसमें कोई वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन है? वो गिवन है ना यहाँ पे क्यू डॉट की वैल्यू, तो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन की टर्म भी गिवन है, क्यू डॉट इज इक्वल टू 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 20 वॉट पर मीटर क्यूब, ठीक है? अब हम दूसरे पार्ट को स्किप करते हैं जल्दी से। हम सबसे पहले ये स्कीमेटिक उसकी ड्रॉ करती है। ये टीएस वैल्यू है जहाँ पे कोल की जनरेशन हो रही है, ये उसकी एब्जॉर्बिविटी और एमिसिविटी की वैल्यू गिवन है, और ये उसने कन्वेक्शन के पैरामीटर दे दिए। अब अभी हम बात कर रहे हैं पहले ही चीज की, फॉर कांस्टेंट थर्मल कंडक्टिविटी द हीट डिफ्यूजन इक्वेशन, ये हमने ड्राइव की थी लास्ट वीक। अब इसके अंदर क्योंकि टेम्परेचर की टाइम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, तो ये जो सी राइट हैंड साइड पे टर्म है जहाँ पे डिनोमिनेटर में ये आ रहा है टाइम, वो वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये क्योंकि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रही थी, तो वाई और वी वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। तो पार्शियल स्क्वायर टी अपॉन पार्शियल वाई स्क्वायर और पार्शियल स्क्वायर टी अपॉन पार्शियल जेड स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शो की गई है उसमें सिर्फ एक्स की डिपेंडेंस है, ठीक है? वी कैन सी द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है? और एक्स यहाँ पे वाई डायरेक्शन में है बेसिकली, ठीक है? ये जो फिगर बनी हुई है। अच्छा जी, तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है? डी बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, जिसको हम अब यहाँ पे देखें तो पार्शियल फॉर्म में थी, अब यहाँ पे टोटल डिफरेंशियल फॉर्म में आ गई। ये टोटल डिफरेंशियल फॉर्म में क्यों आई है? क्योंकि अब टेम्परेचर इज ओनली फंक्शन ऑफ एक्स, नो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाई, नाइदर वी नॉर टी, सो इट इज ओनली फंक्शन ऑफ x, so that's why it is written in the form of total derivative d by dx, not partial by partial x. Now it is written in terms of d by dx. Now if we want to know that whether the temperature distribution जो कि पिछली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में थी, वो इस इक्वेशन को जो कि ये वाली चीज है इसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें? एनीवन? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है वो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पता है, वो ये गिवन है पी ऑफ एक्स प्लस क्यू डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2k इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर।
Now, if we put that temperature distribution here and differentiate it twice, तो ये पूरी वाली टर्म माइनस क्यू डॉट के आनी चाहिए, क्योंकि जब वो माइनस क्यू डॉट के आएगी तो वो कैंसिल आउट होगी विद प्लस क्यू डॉट अपॉन के से। ये चीज समझ आ रही है? इज देयर एनी डाउट? ठीक है, ये वाली जो पूरी टर्म है डी बाई डी एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू पिछले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन आएगी और फिर उसके बाद ये जो पूरी टर्म का जो रिजल्ट है वो माइनस क्यू डॉट अपॉन के आना चाहिए इन ऑर्डर टू एबल टू गेट दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड। अदरवाइज अगर ये माइनस क्यू डॉट अपॉन के नहीं आएगा तो ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं होगा ये नेक्स्ट टर्म से, जो कि प्लस क्यू डॉट अपॉन के है। तो अगर जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास वो ये थी, अगर इसको यहाँ पे पुट करें, पहली तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी एस वाली टर्म 0 हो जाएगी और हमारे पास अगली टर्म के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 के, वो वैसे ही आ जाएगा। 1 वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये वाली दूसरी टर्म क्या बचेगी, माइनस 2x अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? जब पहली तरह डेरिवेट करेंगे इसको तो ये टी एस वाली टर्म क्योंकि कांस्टेंट है, ये एक्सपेक्ट वन नहीं कर रही तो ये 0 हो जाएगी और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो पहली टर्म है 1 वाली, ये भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगी। हमारे पास जो बचेगी डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स के इस पैरेंथेसिस में क्या बचेगा, क्यू डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 के इंटू माइनस 2x अपॉन एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर इस एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और 2 जो यहाँ पे आया हुआ है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल या डिफिकल्टी है ये इसको करने में? एनी सजेशन? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू डॉट अपॉन के इंटू एक्स। ठीक है, अब उसको दोबारा जब डेरिवेट करेंगे तो माइनस क्यू डॉट अपॉन के तो वो तो कांस्टेंट है वो वैसे ही आ जाएगा और एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। डी बाई डी एक्स इंटू अगर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 होगा, तो वहां से हमारे पास ये जो पूरी टर्म है वो माइनस क्यू डॉट के आ गई। वो जब प्लस क्यू डॉट के साथ हम देखते हैं तो ये क्यू डॉट के इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास ये हमें क्या बता रहा है कि ये जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थी ये वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट कन्वेक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी चीज हमने इसमें ये डिडक्ट की थी अभी शुरू में कि जो बॉटम सरफेस है इसके ऊपर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। अच्छा जी, अगर टेम्परेचर मैक्सिमम हो तो हीट का फ्लो जो सा है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड या फिर अपवर्ड टू लोअर? अगर बॉटम सरफेस का टेम्परेचर मैक्सिमम है और टॉप सरफेस का टेम्परेचर उससे कम है तो जो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन है वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगी या टॉप टू बॉटम होगी? बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप होगी। इसका मतलब ये excellent observation. So it means that all the heat which is being generated within this core that would be going towards the top surface. ठीक है, बॉटम सरफेस के ऊपर से कोई चीज बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उसका मैक्सिमम टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बॉटम सरफेस है ये इंसुलेटेड होगी। ठीक है, एक चीज तो ये पता चल गई कि ये इंसुलेटेड होगी। अब इसको चेक करना हो तो हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये बॉटम सरफेस इंसुलेटेड है? एनी सजेशन? अगर हमने ये चेक करना हो कि ये बॉटम सरफेस इंसुलेटेड है या नहीं, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? इज देयर एनी वे टू डिटरमिन दैट? एनीवन? जब इंसुलेटेड होती है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है ना सरफेस के ऊपर। ये बात क्लियर है जी कि फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम किसी तरह बॉटम सरफेस के ऊपर फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकें तो अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो उसका मतलब ये है कि ये एक इंसुलेटेड सरफेस। ठीक है, तो हम दोबारा वो पहली बात तो ये कि मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर की यहाँ पे बॉटम सरफेस के ऊपर,
वो हम सीधे आराम से देख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टी एस प्लस क्यू डॉट एल स्केयर अपॉन 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली पूरी टर्म 1 हो जाएगी. नाउ वेदर दैट इज इंसुलेटेड और नॉट, इफ वी डिटरमिन द फ्लक्स वैल्यू एट दैट विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी बाई डी एक्स. अब हमने डी टी बाई डी एक्स अगर निकालना है तो टी एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डी टी बाई डी टी एस बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी, वो यहाँ पे आ गई. टू डॉट एल स्क्वायर अपॉन 2 के एज इट इज आ गया. और अगर ये 1 वाली टर्म 0 हो गई और यहाँ पे देखें तो x आ रहा है, तो x की वैल्यू जैसे 0 पुट करते हैं तो ये पूरी चीज 0 हो जाती है. ठीक है, तो qx की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई. ठीक है, ये भी चीज क्लियर होगी क्योंकि जैसे ही x यहाँ पे 0 आएगा तो ये वाली चीज 0 हो जाएगी. जब ये पैरेंथेसिस वाली चीज 0 हुई तो ये वाली जो चीज है, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है, this into 0 would be equal to 0 and then k into big brackets के अंदर जो चीज है वो 0 है, तो अल्टीमेटली the flux value would be equal to 0. ठीक है, so I hope that this thing is clear to all. Now moving on to the second part. अच्छा जी, ये second part क्या है इसका? Obtain an expression for the rate of heat transfer by conduction per unit area at x is equal to L. Now the question statement is saying that we need to determine the expression for the rate of heat transfer by conduction per unit area at x is equal to L. अच्छा जी, एक बार अगर हम इस चीज को नोट करें कि ये बॉटम सरफेस हमारी इंसुलेटेड है, तो इस कोर लेयर के अंदर जितनी भी हीट जनरेट होगी वो इस टॉप सरफेस तक कैसे पहुंचेगी? कौन सा मोड होगा उसका पहुंचने के लिए? कंडक्शन से. कंडक्शन होगा. एक्सीलेंट. अब वो जो हीट होगी वो कितनी होगी जो पहुंचेगी इसके ऊपर? अगर हमें ये गिवन है क्यू डॉट की वैल्यू जो कि पर मीटर क्यूब है, तो अगर हमने निकालनी हो कि इस सरफेस के ऊपर कितना फ्लक्स पहुंच रहा है, फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो हमें इसका मतलब ये है कि क्यू डॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द थिकनेस ऑफ दिस कोर लेयर. वो कितनी है? x इज इक्वल टू 0 से लेके l तक है ना, कैपिटल L. तो इसकी जो थिकनेस है वो कैपिटल L है. ठीक है, तो अगर हमने फ्लक्स की वैल्यू जो कि कंडक्शन के थ्रू इस टॉप सरफेस के ऊपर आ रही है, अच्छा टॉप सरफेस के लिए ये ई इन होगी. ठीक है, क्योंकि वो क्यू कंडक्शन से आ रही है. और ई आउट किसकी इक्वल होगी? वो होगी कन्वेक्शन से जो लॉस हो रहा है और जो एमिशन से लॉस हो रहा है. उसके अलावा ई इन कौन सी होगी? जो कि सोलर रेडिएशन से ई इन हो रही. तो हमारे पास 2 ई इन है. ई इन कौन कौन से हैं? एक जो नीचे से कंडक्शन के थ्रू आ रहा है जो कि वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन को इस सरफेस के ऊपर लेके आ रहा है. और दूसरा ई इन कौन सा है? जो कि रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के थ्रू आ रहा है. ई आउट किस किस के इक्वल है? एक वो जो एमिशन की वजह से आउट हो रहा है, और दूसरा ई आउट कौन सा है? जो कि कन्वेक्शन की वजह से जो कि हीट लूज हो रही है, वो हमारे पास ई आउट. 2 ई आउट है और 2 ई इन है. अच्छा जी, सबसे पहले तो obtain an expression for the rate of heat transfer by conduction per unit area at x is equal to L, और जो कि मैंने अभी बताया that would be equal to q dot into L होगा. अच्छा जी, अब ये अगर देखें तो ये जो इस टॉप सरफेस के ऊपर ये जो स्कीमेटिक है, यहाँ पे सरफेस एनर्जी बैलेंस अगर देखें तो ये देखें, ये कंडक्शन हीट ट्रांसफर ये बताई गई है क्यू एक्स इंटू एल, दैट वुड बी इक्वल टू क्यू डॉट इंटू मल्टीप्लाई बाय एल. ठीक है, और दूसरी एनर्जी कौन सी है? वो सोलर की वजह से हो रही है. और आउट कौन सी हो रही है? क्यू कन्वेक्शन और जो एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम दिस सरफेस. ठीक है, ये 2 आउट है. ठीक है, तो अब अगर हम उसको देखें, द रेट ऑफ हीट फ्लक्स एट द टॉप सरफेस क्यू एक्स एट एल वुड बी इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक हीट फ्लक्स जो कि इक्वल है क्यू डॉट मल्टीप्लाई बाय एल. एल क्या चीज है? जो कि थिकनेस ऑफ दिस कोर लेयर. ठीक है, इन द वाई डायरेक्शन. ये एक्स डायरेक्शन वाली ये लेंथ नहीं है, बल्कि ये वाई डायरेक्शन में जहाँ पे लेंथ शो हो रही है. ठीक है जी. अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा दोबारा स्टेटमेंट पे आ जाए, ये पहला मिनी पार्ट तो कर लिया हमने पार्ट बी का. आगे क्या है? अप्लाइंग एन एनर्जी बैलेंस टू अ कंट्रोल सरफेस अबाउट द टॉप सरफेस. इसके ऊपर एनर्जी बैलेंस अप्लाई करना है. एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टीएस. टीएस इज द
सरफेस टेम्परेचर ऑफ द टॉप surface, ठीक है, and evaluate the values of TS and T0 for the prescribed condition. हमने TS और T0 की वैल्यूज निकालनी है। अब जो T0 की वैल्यू है वो कहाँ पे है, वो बॉटम सरफेस पे है, तो वो निकालना बहुत इजी है। वो निकालने के लिए हमें ये करने की जरूरत भी नहीं है। TS की वैल्यू और T0 की वैल्यू हम रेडिली फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं जो गिवन है। वो कैसे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लेकिन हमें सॉरी अभी हमें ये TS की वैल्यू नहीं ना पता। TS का एक हमें वैल्यू पता होनी चाहिए जो कि ये एनर्जी बैलेंस से आएगी, तो उसके बाद वी वुड बी एबल टू वैल्यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ T0 आफ्टर दैट, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हम एनर्जी बैलेंस अप्लाई करते हैं क्योंकि ये एक स्टेडी स्टेट ऑपरेशन है। इसमें क्या हो जाएगा, ई डॉट इन माइनस ई डॉट आउट प्लस ई डॉट बी इज इक्वल टू 0। ई डॉट इन हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू एक्स एट एल, जो कि कंडक्शन के थ्रू आ रही है एनर्जी, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन वाली जो एनर्जी है टॉप सरफेस पे आ रही है, एक वो ई इन है, और उसके अलावा ये जी एस इंटू ये जो सोलर फ्लक्स से आ रही है, ये दूसरी चीज आ रही है, प्लस जी एस एफ, ये दो ई इन है। और ई आउट कौन कौन सी हैं, क्यू कन्वेक्शन, और ये जो ई है ये एमिशन को शो कर रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो क्यू एक्स इंटू एल की वैल्यू अभी हमने पिछली स्लाइड के ऊपर निकाली थी, क्यू डॉट इंटू एल। क्यू डॉट क्या है, वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन, जो जिसकी वैल्यू 20 वाट पर मीटर स्क्वायर। दोबारा बेटा दोबारा पूछिए, आपकी आवाज कट गई है। बता दे किस चीज का आवाज कट रही है आपकी? शाहिद, if you can hear the question, can you please repeat it for me? सर मुझे भी समझ नहीं आया क्वेश्चन उसका। जी क्या क्वेश्चन है बेटा, आपकी आवाज कट रही है। क्वेश्चन लिखी आपने, ई इन ई आउट वाली, ये समझा दे दोबारा। ई इन और ई आउट वाली? यस सर। ओके बेटा, ये सरफेस के ऊपर हम एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं ना, तो अब हमने देखना है कि इस सरफेस के ऊपर कितने एनर्जी फिनोमेना हैं जो कि इस सरफेस के लिए इन है, जो कि इस सरफेस से के तरफ आ रहे हैं, और कितने फिनोमेना हैं जो कि आउट जा रहे हैं। अब देखें तो ये कोल्ड जोन सी है, ये हीट प्रोड्यूस कर रही है। अब जो बॉटम सरफेस है वो इंसुलेटेड है, ठीक है जी। जब बॉटम सरफेस इंसुलेटेड होगी तो जितनी भी हीट जनरेट होगी इस कोल के अंदर, उसके पास एक ही रास्ता है बाहर जाने के लिए कि वो पहले टॉप सरफेस के तक जाए और फिर बाहर जाए, ठीक है। अब टॉप सरफेस पे जाने के लिए अगर यहाँ पे एनर्जी बैलेंस लगाएंगे तो कोल लेयर के लिए, अगर उस टॉप सरफेस के लिए वो एनर्जी इन है, जो कि जो बाकी मटेरियल है वहां से एनर्जी आ रही है, और दूसरी एनर्जी इन कहाँ से आ रही है जो कि टेम्परेचर बढ़ा सकती है सरफेस का, वो आ रही है फ्रॉम द सोलर फ्लक्स, जो कि सोलर एनर्जी आ रही है वो सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही है और उसके लिए इन है। अब आउट कौन कौन से फिनोमिना हैं, एक कन्वेक्शन का फिनोमिना है जो कि हीट को यहाँ से जो एयर है वो हीट कुछ एक्सट्रैक्ट करेगी फ्रॉम दिस सरफेस, और दूसरा फिनोमिना कौन सा है कि ये जो सरफेस है ये एमिट कर रही है डायरेक्टली, ठीक है बेटा। इज दैट गिव्स यू द आंसर ऑफ योर क्वेरी? इज इट क्लियर? जी सर समझ आ गई है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके जी, अब अगर जी पूछिए। हीट जनरेशन का क्या होगा इसमें? बेटा हीट जनरेशन जो सी है वो हमने ये कंडक्शन वाले में उसे कवर कर लिया ना शायद, क्योंकि जितनी भी हीट जनरेट हुई है वो कंडक्शन के थ्रू यहाँ तक आई है ना। जी सर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे उसे कंडक्शन वाली ये क्यू एक्स इंटू एल वाली टर्म में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। सर जो एक्सप्रेशन इन्होंने दिया है वो हीट जनरेशन को कवर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि जो ई डॉट जी जो सी टर्म है वो बेसिकली कंडक्शन के इक्वल है ना। अगर आप ये पिछली स्लाइड के ऊपर चले जाएं, ये देख रहे हैं आप, क्यू डॉट एक्स एल इज इक्वल टू ई डॉट जी, ये आप देख रहे हैं? जी सर। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ई डॉट जी वो इनकॉर्पोरेट हो गया है वो कंडक्शन वाले में।
ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। Okay, now when we put it in the values qx at L is equal to q dot L, जो कि अभी शायद से मैंने डिस्कस किया कि वो वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन वो यहाँ पे आ गई, जो कि E डॉट जी की इक्वल थी, और माइनस एच इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, ये वो वाली टर्म है जो कि कन्वेक्शन वाली टर्म है। और अगर आप देखें तो सोलर रेडिएशन के लिए एक फ्लक्स वैल्यू गिवन थी जो कि 400 वॉट थी, लेकिन क्योंकि एब्जॉर्बिविटी की वैल्यू अल्फा की वैल्यू 0.95 है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एमिसिविटी ऑफ दिस सरफेस वो भी 0.95 है इंटू सिग्मा, जो कि हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। तो आई होप कि ये चीज क्लियर होगी आपको। तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे TS4 भी आ गया और TS भी आ गया। तो यहाँ पे अब इसकी जो अगर कैलकुलेशन करनी हो तो अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो यू कैन इजीली डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से नॉन लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन इसकी आप कैलकुलेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर के ऊपर आराम से कर सकते हैं जो कि आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ से TS की वैल्यू आ गई। अब TS की वैल्यू आ गई, once we got the TS value which is the temperature of this top surface, उसकी वैल्यू आ गई 22.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा ये बताइए विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, ये जो T0 की वैल्यू होगी जो कि बॉटम सरफेस है, इसकी वैल्यू 22.7 से ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये बॉटम सरफेस इंसुलेटेड है, जितनी भी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है वो टॉप सरफेस की तरफ जा रही है। तो टॉप सरफेस की तरफ सिर्फ एक ही सूरत में जा सकती है जब टेम्परेचर एट द बॉटम इज मैक्सिमम एंड एट द टॉप इट इज लेस देन द बॉटम। तो अगर हम वो रिलेशन भी देखें तो यहाँ पे 22.7 पुट करेंगे तो यहाँ पे Q डॉट की वैल्यू हमें पता है 20 वॉट इंटू 1 मीटर स्क्वेयर, जो लेंथ है, लेंथ हमने उसकी 1 मीटर ली है, और 2 वैसे आ गया, के की वैल्यू गिवन है। तो अगर आप देखिए तो टॉप सरफेस की वैल्यू आ रही, जो बॉटम सरफेस है उसकी वैल्यू आ रही है 61.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हीट जनरेशन हो रही है तो उसकी वजह से मैक्सिमम हमारे पास टेम्परेचर बॉटम सरफेस के ऊपर है और हीट लूज हो रही है फ्रॉम द टॉप सरफेस। तो टॉप सरफेस के ऊपर जो वैल्यू है वो 22.7 डिग्री, ठीक है। सो आई होप दैट दिस प्रॉब्लम इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन। So I think if there is no query, we can have 5 minutes break and then we can resume after 5 minutes. Okay? Is there any query? Please ask. Okay, ji. So it seems that it is okay with everyone. So we would take a break so that you can have a little bit of relaxing time. So we would start after 5 minutes from the next topic. Okay, thank you.
Okay, welcome back. So we are going to continue from where we left. So this was chapter number 2 we discussed up till now. So now we are going to discuss these are some of the problems which you need to do at your own time. So these are 4-5 problems. So I hope that this would give you more experience in dealing with heat diffusion equation. Now we are going on to study one-dimensional steady-state heat conduction in detail. So, सर जी सर आपके ड्रॉप बॉक्स का लिंक बहुत इशू करता है, कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकता है इसका? बिल्कुल हो सकता है, मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा, ठीक है जी सर, पीडीएफ भेज दिया। मैं पीडीएफ भेज दिया करूंगा, नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। So from now on you would get the PDF of the lecture rather than the Dropbox link, ठीक है। So thank you for letting me know the issue. So I would be sending you PDF from now on. Okay जी, so in the one-dimensional steady-state conduction we would be studying plane wall case, जैसे कि अभी हमने दो न्यूमेरिकल किए। Then we will be discussing, क्योंकि आमतौर पे कई मटेरियल होते हैं वो कंपोजिट्स होते हैं, यानी कि वो डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, तो जब उन डिफरेंट लेयर्स को आपस में हम मर्ज करते हैं देन देयर इज अ एडिशनल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो 100% तो स्मूथ सरफेस नहीं होती, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हम उसके अंदर स्टडी करेंगे फिनोमेना जो कि एक एडिशनल रेजिस्टेंस होती है टू द फ्लो ऑफ हीट। Then we would be discussing cylindrical bodies, spherical bodies. अब ये जो हमने दो पढ़े थे ना, spherical coordinates और cylindrical coordinates में equation, हम उनको यूज करते हुए भी एनालिसिस करेंगे। And then what is critical radius of insulation, and then the most frequently used application of one-dimensional steady-state conduction is the fins. Fins are the extended surfaces, ठीक है। ये एक्सटेंडेड सर्फेसेस अगर देखें तो रेडिएटर के ऊपर एक्सटेंडेड सर्फेसेस वो प्लेट्स ही होती हैं। उसके अलावा एनी एग्जांपल ऑफ दैट, जैसे ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर वो प्लेट्स ही लगी होती हैं, तो वो एक्सटेंडेड सर्फेसेस होती हैं, क्योंकि जहाँ पे भी कन्वेक्शन होनी होती है तो वहाँ पे हम एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो कन्वेक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम फिर इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 3 इज अ मेजर चैप्टर ऑफ एचएमटी, ठीक है। इट इज क्वाइट लेंथी चैप्टर, इट वुड टेक आई थिंक 3 to 4 weeks, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन डिमेंशनल स्टडी स्टेट थ्रू अ प्लेन वॉल। अब प्लेन वॉल के केस में अगर हम डिस्कस करें, जैसे हमने कोर का केस डिस्कस किया था अभी पिछले न्यूमेरिकल में, उसमें प्लस क्यू डॉट अपॉन के भी था। तो फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ द एनालिसिस इफ वी से that there is a wall on which we have got temperature we have got air flowing through left as well as the right one, right side as well. So there is no volumetric heat generation in this plane wall case. So it would be d by dx k into dt by dx is equal to 0. तो क्योंकि q डॉट कोई टर्म नहीं है। अब अगर यहाँ से हमने हम कहेंगे के जो सा है ये होमोजीनियस मटेरियल है, तो के की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो अगर के की वैल्यू बाहर आ जाए ये पैरेंथेसिस से, तो आपके पास दो टर्म्स हो जाएंगी, एक हो जाएगी के और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही के इंटू डी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब के एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, दोबारा बताइए anything please। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। आवाज कम आ रही है या इज दिस द केस विद एवरीवन? यस सर, और लैग दोनों है। आवाज कम आ रही है। शारिस, जजाद, सर आ रही है। अच्छा चले ठीक है। So the equation we would be looking at that would be equal to k d square t upon dx square। Now d square t upon dx square को अगर हमने ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम ट्राई करते हैं कि
किसी जगह पे हम इसको लिख भी सके। एक मिनट, हमारे पास इक्वेशन थी, लेट मी ट्राई द वाइट बोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी जो अभी हमने जस्ट अ मिनट, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, डी बाय डी एक्स के इंटू डी टी बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। यहाँ से अगर ये जो k है, k को हम बाहर ले जाए, हम कहेंगे वो आइसोटोपिक मटेरियल है, देन वी कैन राइट k into d square t upon d। इज इट विजिबल टू एवरीवन व्हाइट बोर्ड? ठीक है जी। तो अब अगर देखें तो ये a into b इज इक्वल टू, ये विजिबल है जी? जी सर विजिबल है। अच्छा जी। अब अगर देखें तो हमारे पास एक चीज है ये k और एक चीज है ये पूरी डिफरेंशियल टर्म, ठीक है। तो अब k इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, तो इट कैन नॉट बी 0, ठीक है। अब जब ये 0 नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास, आई एम न्यू टू इट, तो अगर हम इसको डिलीट कर दे इस टर्म को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ये इसको 0 बना रहा है ना। ये बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो ये डी स्क्वायर टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर हमने डिफरेंशिएट करना हो, हाउ कैन वी डू दैट? पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू C1, ठीक है। दूसरी तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1 x प्लस C2, ठीक है जी। तो हमारे पास जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास वो C1x प्लस C2 आ गई, ठीक है। Apologies for the not very perfect writing, so we would get used to it as we move along with this course, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो वही चीज लिखी हुई है, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू C1x प्लस C2। नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2? एनीवन? Boundary conditions. Boundary condition. Now if it is specified that at x is equal to 0 we have got t is equal to ts1 and at x is equal to l t is equal to ts2, then we can determine the value of ts1 or ts2। तो अगर हम दोबारा वहां पे चले जाएं, अब अगर हमारे पास जब x इज इक्वल टू 0 है और ts1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ts1 इज इक्वल टू C2। तो हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई ts2, ठीक है। और इसी तरह जब हमारे पास है x is equal to l, then we have got t of x is equal to ts2। तो उसको हम लिख सकते हैं ts2 is equal to c1 into length plus c2। now we know c2 is equal to ts1, तो हम we can determine हमारे पास C2 की हमारे पास C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, if we do the math, then that would be equal to ts2 minus ts1 divided by length, ठीक है जी। ये अगर आप देखें तो हमने पहले ts1 की वैल्यू निकाली जो कि C2 के इक्वल आई, एंड देन वी पुट, यहाँ पे फार्मूले में हमने दोबारा इसको x इज इक्वल टू l के ऊपर पुट किया, तो ts2 थी वैल्यू वहाँ पे tx की, तो वो हमने पुट की, तो हमारे पास वैल्यू आ गई C1 इज इक्वल टू ts2 माइनस ts1 डिवाइडेड बाय l। तो यहाँ से अगर हम देखें तो t of 0 इज इक्वल टू ts1, t of l इज इक्वल टू ts2। सो फ्रॉम हेयर C2 की वैल्यू जैसे हमने पहले निकाली थी ts1 की इक्वल है, एंड C1 की वैल्यू हमारे पास है ts2 माइनस ts1 डिवाइडेड बाय l।
तो हमारे पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गई, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे C1 था वहां पे हमने TS2 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय एल पुट कर दिया इनटू एक्स जो कि 7 था, एंड प्लस TS1 जो कि C2 की वैल्यू थी। ठीक है जी, तो ये हमने पुट कर दिया। यहाँ से अगर हम dt बाई डी माइनस के ए dt बाई डी एक्स की वैल्यू से हीट ट्रांसफर रेट निकालना है तो टी ऑफ एक्स ये है हमारे पास। ठीक है, जो सेकंड टर्म है TS1 वाली, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स TS1 वुड बी इक्वल टू 0, और ये वाली जो इक्वेशन है ये TS2 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय एल हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि माइनस है तो माइनस जब अंदर जाएगा तो वो उसे TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय एल और के ए आर। तो ये हमारे पास एक तरफ है, अगर आपको याद हो तो ये फोरियर लॉ की एक फॉर्म है के ए डिवाइडेड इनटू TS1 माइनस TS2 के डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन, तो जो कि अब आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकाली और उसके बाद हमने फोरियर लॉ अप्लाई किया टू गेट द हीट ट्रांसफर रेट, जो कि इक्वेशन नंबर 15 में शो हो रहा है। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम ऑन दिस स्लाइड? ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ये सिंपल एक सिंपल प्लेन वॉल का केस, लेकिन लेट्स गो बैक एंड कंसिडर दैट इट इज अ मल्टी लेयर, यानी कि ये इस तरह है जैसे हमारे घर में वॉल्स होती हैं हमारे घर की, उसमें क्या होता है, एक पेंट होता है पहले, उसके बाद सीमेंट होता है, फिर ब्रिक होता है, फिर बाहर कई लोगों ने इंसुलेशन भी पुट की होती है, तो वो मल्टी लेयर होती है। ठीक है, तो मल्टी लेयर के केस में ये एनालिसिस करना जब डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर उस केस में, हाँ अच्छा, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स पढ़ा होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, वो किसके इक्वल होती है, ओहम्स लॉ। डू यू रिमेंबर द ओहम्स लॉ व्हिच यू स्टडीड इन एफएससी और ए लेवल? ओहम्स लॉ क्या होता है जी, एनीवन? V equal to V is IR। equal to IR। बिल्कुल ठीक है, वहां से आर की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, V डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब अगर हम देखें व्हाट इज V हियर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द सोर्स। ठीक है, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई होगा ना। तो I क्या चीज है जो कि उसमें से फ्लो करती है, ये ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही है ना, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो V क्या चीज है जो कि उस चीज को कॉज करता है करंट के फ्लो को। तो अब अगर इसी चीज को हम ये हीट ट्रांसफर में अप्लाई करें तो हीट ट्रांसफर के अंदर हमारे पास जो सोर्स होता है जिसकी वजह से हीट फ्लो करती है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। ठीक है, और फ्लो क्या चीज करती है, वो हीट फ्लक्स फ्लो करता है ना, हीट ट्रांसफर जो होता है। तो बाकी जो चीज होगी वो रेजिस्टेंस होगी। अब इस फार्मूले में देखें, फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन 15 में हमारे पास जो कॉज कर रहा है हीट ट्रांसफर को वो है जो टेम्परेचर डिफरेंस TS1 माइनस TS2, और फ्लो क्या चीज कर रही है वो QX। ठीक है, जैसे V अपॉन आई था तो V यहाँ पे बन गया डेल्टा टी, और I क्या चीज है वो है QX। तो बाकी जो चीज बचेगी वो उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं वो किसके इक्वल हो जाएगी, L अपॉन के ए। ठीक है, तो L अपॉन के ए वाली जो टर्म है दैट वुड बी कंडक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है कि ये हमने एनालॉजी क्रिएट की है जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट की होती है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने कंडक्शन की ये एनालॉजी क्रिएट की है L अपॉन के। अच्छा जी, इसी तरह अगर हमने करनी हो एनालॉजी क्रिएट फॉर द कन्वेक्शन, ये तो थी कंडक्शन की रेजिस्टेंस, कंडक्शन की रेजिस्टेंस क्या होगी, ये जो रिलेशन गिवन है जहाँ पे फ्लो कराने की रीजन क्या है कि TS और T इंफिनिटी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो दैट इज द सोर्स ऑफ दैट फ्लो, और फ्लो क्या चीज कर रही है वो Q है। तो TS माइनस T इंफिनिटी डिवाइडेड बाय Q वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन HA। ठीक है, तो 1 अपॉन HA इसमें हमारे पास हो जाएगी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। ठीक है,
यानी कि एक चीज हो गई कंडक्शन रेजिस्टेंस जो कि L अपॉन के की इक्वल है, और इसी तरह कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो जाएगी 1 अपॉन एच ए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है जी? इफ देयर एनी जी सर। क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको ये फिगर में ले आऊं, ये जो फिगर है इसमें मुझे बताएं कि कितने फिनोमिना हो रहे हैं। अगर इस फिगर को देखें, हीट ट्रांसफर के कितने फिनोमिना हैं, नंबर ऑफ दो फिनोमिना। ठीक है, टोटल 3 फिनोमिना हो रहे हैं। एक हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड वॉल के ऊपर कन्वेक्शन, फिर थ्रू द वॉल कंडक्शन, एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अगेन कन्वेक्शन। तो इसका क्या मतलब है कि हीट फ्लो कर रही है फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो अगर यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर था वो T इंफिनिटी 1 हो, जो हार्ड फ्लूइड है, और जो कोल्ड फ्लूइड है जो यहाँ पे पास कर रहा है उसका टेम्परेचर है T इंफिनिटी 2, तो उसके बीच में कितनी डिस्टेंसेज आएंगी? एक तो आएगी कंडक्शन रेजिस्टेंस जो कि L अपॉन 3 आएंगी, जो कि एक सबसे पहले हमारे पास कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगी जो कि होगी H अपॉन H 1 अपॉन एच ए। एच की वैल्यू होगी हॉट फ्लूइड के लिए। उसके बाद ये होगी कंडक्शन रेजिस्टेंस जो कि L अपॉन के, और फिर होगी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस जो कि H आउटर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन H आउटर इनटू एरिया। तो हमारे पास ये सीरीज का सर्किट होगा। सीरीज जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने सर्किट पढ़े तो ना, सीरीज में क्या होता है कि करंट सेम फ्लो करता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि हीट सेम फ्लो कर रही है। ठीक है, तो ये सीरीज का सर्किट है। तो उस सीरीज के सर्किट को अगर हमें शो करना हो तो वो इस तरह है कि यहाँ पे देखें T infinity 1 is the temperature of the hot fluid and T infinity 2 is the temperature of the cold fluid. First of all we have got convection resistance जो कि 1 अपॉन H1A है, फिर कंडक्शन रेजिस्टेंस जो कि L अपॉन K है, और फिर हमारे पास 1 अपॉन H2A जो कि दोबारा कंडक्शन रेजिस्टेंस है, जो कि कूलिंग जो कोल्ड फ्लूइड जो कि राइट हैंड साइड पे हो रहा है। ये वॉल के अंदर कंडक्शन फिनोमेना है और ये लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वेक्शन है। अब इसमें ये देखिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी होती थी तो क्या करते थे? सीरीज में ऐड करते सीरीज में ऐड कर देते थे, और पैरेलल में 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करते थे ना। ये हमने पैरेलल सर्किट भी पढ़े थे। और सीरीज में करंट सेम फ्लो करते हैं और टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो सम कर लें। तो इसमें अगर हमने पहली बात है कि करंट सेम फ्लो करेगा फ्रॉम द ईच रेजिस्टेंस। तो अगर आप देखें तो T infinity 1 माइनस TS1 इज द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। तो उसके बीच में रेजिस्टेंस कौन सी है? 1 अपॉन H1A। तो करंट क्या है यहाँ पे? वो हीट फ्लो है। तो T infinity 1 माइनस TS1 डिवाइडेड बाय 1, रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है? 1 अपॉन H1A। ठीक है, और इसी तरह कंडक्शन में TS1 माइनस TS2 डिवाइडेड बाय कंडक्शन रेजिस्टेंस जो कि L अपॉन K है, और इसी तरह कन्वेक्शन रेजिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड। अब एक चीज आप नोट कर लें कि इसमें जो हीट ट्रांसफर रेट है वो सेम है तीनों जगह पे। जो लेफ्ट हैंड साइड पे कन्वेक्शन हो रही है वही कंडक्शन हो रही है विद इन द बॉडी, एंड देन द सेम थिंग इज बीइंग gone out by the convection on the right hand side। और टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालनी हो तो जैसे अभी बताया है कि सीरीज में सर्किट है तो उसमें हम टोटल रेजिस्टेंस किसकी इक्वल आ जाएगी? आर कन्वेक्शन इनर प्लस आर कंडक्शन प्लस आर कन्वेक्शन आउटर। तो आर कन्वेक्शन इनर किसकी इक्वल है? 1 अपॉन H1A प्लस L अपॉन KA प्लस 1 अपॉन H2A। ठीक है जी, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो अगर आपको वो जो फ्री स्टीम टेम्परेचर हैं जो हॉट फ्लूइड के हैं, तो अगर आपको वो पता हो तो वहां से आप QF निकाल सकते हैं। और QF निकालना हो तो ये वाले फार्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हैं इंटरचेंजेबली। ठीक है, एक ही वैल्यू आएगी क्योंकि सीरीज में सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने किया था सिर्फ कन्वेक्शन का। तो अगर रेडिएशन के भी फिनोमेना को इंक्लूड करना है तो वो जो HR वाला एक चीज हमने पढ़ी थी चैप्टर 1 में, जिसमें HR वाज इक्वल टू
epsilon into sigma into this thing which we derived it. तो हम रेडिएशन की रेजिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं इन द सेम फॉर्मूलेशन, ठीक है। तो हमारे पास HR की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये जो थर्मल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होगा। ये यूज कहाँ पे होता है, ये मल्टी लेयर जहाँ पे फिनोमिना हो रहे होते हैं वहां पे इसकी यूजेज ज्यादा आती है। तो लेट्स मूव forward. Now if we see that here we have got a composite wall which involve number of series and parallel thermal resistances. Now if you see we have got a 3-layer material on which we have got on the left hand side we have got hot fluid, on the right hand side we have got cold fluid. Now if we want to determine the heat transfer from this combined geometry in which two convection, how many conduction phenomena in this? 3 conduction, क्योंकि 3 मटेरियल है ना तो 3 कंडक्शन हो रही है यहाँ पे और 2 कन्वेक्शन है। तो R टोटल के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कितनी होंगी? एनीवन? 5, जिसमें से पहली होगी 1/H1A प्लस LA अपॉन KA इंटू एरिया प्लस LB। अब A, B और C मटेरियल है, ठीक है। तो वो अगर आप देखिए तो यहाँ पे उसको ये 5 रेजिस्टेंसेस है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो वहां से अगर हम देखें तो QX इज इक्वल टू T infinity 1 माइनस T infinity 4। अब T infinity 4 इज द, तो अब आप देखें तो वो जो थर्मल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है उसको यूज करते हुए हम we can greatly simplify this heat transfer phenomena which is involving conduction and convection, and we can also include the radiation phenomena here. Okay, तो इसके बाद मेरा ख्याल है यहाँ तक हम इसको रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहाँ से आगे लेके चलेंगे because or maybe we can we have got a time, so we can do one more thing which is overall heat transfer coefficient, ठीक है। अभी तो ये है कि अगर आप देखें ये जो रिलेशन है इसके अंदर हमारे पास कंडक्शन के लिए अलग से रेजिस्टेंस है जैसे L/K और कन्वेक्शन के लिए अलग से रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों जो रेजिस्टेंस हैं इनको हम एक कंबाइंड पैरामीटर से शो कर सकें तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं वो वाला, उस पैरामीटर को हम कहते हैं दे दें, उसको हम कहते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और उसकी जो डेफिनेशन होती है वो हम उसको लिखते हैं आमतौर पे, उसको लिखते हैं Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T, ठीक है। अब अभी जो हमने पढ़ा है अपना रेजिस्टेंस वाला फार्मूला वो किसके इक्वल था? उसमें ये था ना R इज इक्वल टू, R किसके इक्वल था? एनीवन? डेल्टा T डिवाइडेड बाय Q, यही था ना। तो यहाँ से जो सेकंड रिलेशन है, सेकंड रिलेशन से डेल्टा T की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q इंटू R, और R को हम R टोटल कह देते हैं क्योंकि उस थर्मल सर्किट की है। तो अगर हम इसको R टोटल कहते हैं, यहाँ पे मैंने R टोटल लिख दी, इसको हम पुट करते हैं ये पहले रिलेशन में Q, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू UA डेल्टा T की जगह क्या आ जाएगा? Q इंटू R टोटल, ठीक है, यही आएगा ना। तो अब अगर देखें तो Q लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी है और राइट हैंड साइड के ऊपर भी है, तो ये दोनों चीजें हमारी कैंसिल हो जाएंगी और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? UA इज इक्वल टू 1/R टोटल, ठीक है।
और अगर हम एरिया को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/r टोटल इंटू एरिया। ठीक है, तो अब ये U को हम कहते हैं आमतौर पे, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं, U इज इक्वल टू बेसिकली U इज ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, ये अभी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी इसको सीखने में, कोफिशिएंट। ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इसका फायदा क्या होता है कि इट कंबाइंस द इफेक्ट ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, एंड वी कैन राइट एवरीथिंग इन वन कंसाइज फॉर्म विच इज U इज इक्वल टू 1/r टोटल इनटू एरिया। तो अगर हम स्लाइड के ऊपर देखें, यही चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है कि ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द ओवरऑल हीट ट्रांसफर बाय कंबाइंड कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड एज वेल एज रेडिएशन। अगर HR को यूज कर लें तो उसमें रेडिएशन भी आ जाएगी। Writing the formula Q is equal to UA delta T, and then from there, as we did on the digital whiteboard के U is equal to 1/r total into area। अब R total की वैल्यू वही है जो कि उस मल्टी लेयर सिस्टम के लिए हमने निकाली थी, जो कि डिफरेंट के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो वहां से अगर आप देखें तो ये 5 रेजिस्टेंसेस आ गई। ठीक है, और एरिया जहाँ पे मल्टीप्लाई, और अगर आप देखें तो वहां पे 1/h1 इंटू एरिया था ना, एरिया डिनोमिनेटर में था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना एरिया, तो वो एरिया कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमें U सिर्फ एरिया से इंडिपेंडेंट है, 1/h1 प्लस L/K प्लस LB/KB प्लस LC/KC प्लस 1/h4, क्योंकि एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और रेजिस्टेंस का फार्मूला अगर आपको याद हो 1/h1 इंटू एरिया था, तो वो क्योंकि डिनोमिनेटर में था, यहाँ पे R टोटल में डिनोमिनेटर में था, और यहाँ पे वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो वो डिनोमिनेटर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास 1/h1 रह जाएगा। ठीक है, और इसी तरह बाकी टर्म। सो R टोटल इज बेसिकली वी कैन राइट इट 1/UA, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या डेल्टा T/Q। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। और जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि एक हमने सीरीज में तो सर्किट डिस्कस किया है, पैरेलल में जो सर्किट होता है उसका क्या थी स्पेसिफिकेशन, कैसे करते हैं कि उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अगर यहाँ पे देखें ना, यहाँ से अगर टेम्परेचर है और यहाँ पे आउट है, तो यहाँ पे देखें तो बीच में मिडल में हमने 2 किस्म की, यहाँ पे पहले एक मटेरियल है और आखिर में एक मटेरियल है, लेकिन मिडल में अगर आप देखें तो एक मटेरियल, 2 डिफरेंट मटेरियल है। अब ये जो मिडल वाली लेयर है ये पैरेलल में है। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही है। तो इसमें क्या होगा कि हीट फ्लक्स कुछ इसमें से पास करेगा जो टॉप वाली है, और कुछ बॉटम वाली में से करेगा। अगर हम इसे कहेंगे ये वाला मटेरियल है F और ये है G। अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि F वाले मटेरियल में से हीट फ्लक्स ज्यादा पास कर रहा है या G वाले मटेरियल में से ज्यादा पास कर रहा है? हाउ वुड वी डिटरमिन दैट? K की वैल्यू से, अगर Kf is greater than Kg, whether the heat flux going through this F material, whether it would be more or it would be more G material वाले में से। Any idea? अगर ऊपर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हीट फ्लक्स वहां से ज्यादा पास करेगा, या फिर जो बॉटम पे है जो कि G मटेरियल है वहां से ज्यादा पास करेगा? तो जिसका K ज्यादा होगा K की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसमें से ज्यादा पास करेगा सर। उसमें से ज्यादा इसलिए भी पास करेगा क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला देखें तो कंडक्शन रेजिस्टेंस होती है L/Ka। तो K जब डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जब K की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस टू फ्लो कम होगी। तो अगर K की वैल्यू जिस मटेरियल की ज्यादा होगी तो फिर उस केस में वहां से
फ्लक्स की वैल्यू भी ज़्यादा पास करेगी। और अगर हमने वहाँ से वैल्यू निकालनी हो रेजिस्टेंस की, तो जहाँ पे हमें फिर 1/RT वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा कि 1/RT = 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो ये क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी ये चीज़ें हमने कुछ ना कुछ डिस्कस की हुई हैं, तो ये आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। तो एक न्यूमेरिकल है, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में कर लेंगे, और बाकी चीज़ें भी हम इंशाल्लाह अभी हमने पेज ज़रा स्लो रखी हुई है ताकि आप चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें, एंड एज वी मूव अराउंड अभी भी स्लो है, तीसरा चैप्टर शुरू हो गया, अभी स्लो है सर। ये सर, थर्ड slow चैप्टर तो पे आपको थर्ड चैप्टर पे एटलीस्ट 4 वीक्स चाहिए। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो क्योंकि नए कॉन्सेप्ट हैं तो डेलिबरेटली चीज़ों को अभी थोड़ा सा हमने कम पेस रखा है। ठीक है, लेकिन it could be a little bit more, not significantly more, but we have to cover a certain amount of and of course we won't do anything too fast कि आपको अंडरस्टैंड ही ना हो, तो इंशाल्लाह we would take you along the ride। ठीक है, so don't worry about that। ठीक है, तो any question from the today's lecture? If not, then I think I can simply download the attendance and then we would call it a day. So, is there any question? Okay, it seems that No, you sir. are quite happy with the content of the lectures today. So, you can always contact me on MS Teams. If you want to have a one-to-one interactive session, we can have it at any time. So it's up to you. Okay? If you feel a little bit shy about asking the question in front of the entire class, it is fine with me. You can always contact me on MS Team or by email, and then we can set up a one-to-one MS Team meeting, and then we can discuss your queries. तो दैट इज परफेक्टली फाइन विद मी। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स काफ़ी ना, एक तो ये लेंथी भी होगा और दूसरा ये कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आस्ता आस्ता ज़्यादा होता जाएगा, तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू हैव एन इंटरेक्शन अपार्ट फ्रॉम क्लास इफ यू वांट। ठीक है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट विच आर बॉदरिंग यू इफ दैट इज द केस। ठीक है, so I would hope to see you tomorrow. ठीक है, तो Hafiz sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.